Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 5 of unit 4, waste, earth and its movements. Yesterday I gave question number 1 of worksheet 4. I hope you have done. Now let's check the homework. Let's start. Classify the waste items below into biodegradable and non-biodegradable. Some examples are given here. Milk, paper, wood, fruits, plastics, plastic bags, faces, leaves, metal boxes, tea leaves, meat. So, biodegradable wastes are milk, paper, wood, fruits, faces, leaves, tea leaves and meat. Non-biodegradable wastes are plastic bag and metal boxes. Okay? We know that humans produce a lot of waste, and we also know the bad effects of non-biodegradable waste on the environment. So we need to handle waste better, and waste management tells us the actions that we should take to handle waste. Let us look at some examples how waste can be managed better. Okay? Means non-biodegradable waste is very harmful for our environment, जिसकी वजह से हमें वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. You will watch the CRL carefully. Okay. वेस्ट कार्डबोर्ड एंड पेपर्स. ये क्या है? वेस्ट कार्डबोर्ड एंड पेपर्स, राइट. दे आर डम्प्ड इनटू अ मशीन. ये सभी वेस्ट कार्डबोर्ड्स एंड पेपर्स को एक मशीन में डाला जाता है. मशीन क्रश द मटेरियल्स इनटू पल्प. मशीन की हेल्प से उस मटेरियल को क्रश किया जाता है और उसे पल्प में कन्वर्ट किया जाता है. पेपर मशीन. ये कौन सी मशीन है? पेपर मशीन. पल्प इज इक्वली स्प्रेड ओवर अ बिग बेल्ट, और फिर उस पल्प को ऐसी एक बिग बेल्ट में स्प्रेड किया जाता है. देन इट इज आयरन टू मेक इट ड्राई एंड प्लेन. और फिर उसे आयरन किया जाता है. किस लिए? ताकि वो ड्राई एंड प्लेन बन जाए. A new thick roll of paper is ready to be used. और फिर ऐसा एक बड़ा सा रोल बन जाता है पेपर का, जिसे हम यूज कर सकते हैं. What do you think has been done with these bottles? Can you tell me what happened to the waste paper and cardboard? Yes, it was crushed into pulp to make new paper. Okay? Now you will open your SR5. I hope you have opened. Let's start. Waste management. Introduction. We know that 2 trillion kilogram of waste is produced every year. हर साल 2 trillion kilogram जो waste है वो produce होता है. Have you thought about where this waste goes? ये जो waste है ये कहाँ जाता है? What will happen to earth if we keep producing so much waste? अगर हम इतना ही वेस्ट प्रोड्यूस करते रहेंगे तो हमारी अर्थ का क्या होगा? We have learned that waste is produced when some parts are left unused after using the main part. Means main part से कुछ हमारा part जो बच जाता है तो वो क्या होता है? Remaining part is known as waste. Okay? What if we make things in a way that very little waste is produced?
मीन्स हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को बनाएं जिससे हमारा कम वेस्ट प्रोड्यूस हो. What if we are able to use all parts of the things we buy so that there is no waste? Means अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो हम उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उसको यूज़ करें, तो जिससे हमारा जो वेस्ट है वो कम प्रोड्यूस होगा. What if something that is waste for us can be used by someone else? कोई चीज़ हो सकती है हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो यूज़फुल हो सकती है, तो हम उसको भी देकर वेस्ट को कम कर सकते हैं. दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय गुड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके. वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस टू हैंडल वेस्ट फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू फाइनल डिस्पोजल. वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, जो वेस्ट है उसको हैंडल किया जाता है. ठीक है, वेस्ट की क्रिएशन से लेके उसके फाइनल डिस्पोजल तक. द एम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन द अर्थ. जो मेन एम है, मेन जो पर्पस है वेस्ट मैनेजमेंट का, वो क्या है कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स होता है वेस्ट का हमारी अर्थ के ऊपर, उसको हम कम कर सकें. ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट hierarchy means a sequence or order of things. means कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसकी एक सीक्वेंस होती है. ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट hierarchy refers to a series of actions that we can take in order to manage our waste better. And the first 3 steps of the hierarchy: reduce, reuse and recycle, focus on minimizing the waste required to be disposed. यानी कि हमारे 3 steps कौन कौन से हैं? reduce, reuse, recycle. Okay. The last 2 steps focus on minimizing the harmful effect of this waste that we dispose. जो last 2 steps हैं वो harmful जो effects हैं waste के, उनसे बचने के लिए होते हैं. Okay. Reduce. What are these? These are the steps of waste management hierarchy. Okay. You can see reduce means lower the amount of waste produced. Means एक तो हम कम waste को produce करें. Second thing, reuse means use materials repeatedly. हम कोई भी चीज़ अगर लाते हैं तो हम उसको बार बार reuse करें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ग्लास बोतल आपके पास है तो आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो. ओके. उसके अंदर हम कुछ भी अपना जो सामान है वो डालकर रख सकते हैं. देन रिसाइकिल, यूज़ मटेरियल्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. अगर कोई भी चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही वेस्ट हो जाती है तो हम उसको, जो रैग पिकर होता है, कबाड़ी वाला जो होता है, उसको हम दे देते हैं. तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिसाइकलिंग. वो उसको रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्री में ले जाता है. आफ्टर दैट रिकवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट. मीन्स जो एनर्जी है वो दोबारा से वेस्ट से रिकवर करी जाती है. देन डिस्पोज, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. यानी कि अब जो रिकवरी के बाद भी जो बच जाता है तो उसको हम सेफ प्लेस पर डिस्पोज कर देते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं. ओके. Let's see the first step of waste management hierarchy. Reduce. Reduce, also known as waste prevention, means to use less resources. This is the most preferred strategy because it produces less waste to begin with. Let us look at a few examples. Use paper only when required. पेपर को सिर्फ तभी यूज़ करें जब हमें उसकी ज़रूरत होती है. इनकरेज पीपल टू प्रिंट लेस पेपर. और लोगों को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो कम पेपर का यूज़ करें, कम पेपर प्रिंट करें. अवॉइड टू मैनी बैग्स व्हेन शॉपिंग. जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बैग हमें नहीं कैरी करने चाहिए. ठीक है. इफ़ देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स कैरी दैम इन योर हैंड. अगर थोड़ी ही चीज़ें हैं तो आप उनको हाथ में भी ला सकते हैं. यूज़ प्रोडक्ट्स विद
लेस पैकेजिंग। और जब हम प्रोडक्ट कोई भी परचेज करते हैं तो हमें लेस पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ठीक है। कुक एंड ब्रिंग ओनली द अमाउंट ऑफ फूड दैट विल बी यूज्ड, दिस विल रिड्यूस फूड वेस्ट। और जब हम खाना पकाते हैं तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना ही हमें पकाना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम जो फूड वेस्ट है उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ रीयूज। रीयूज मीन्स टू यूज द सेम आइटम मैनी टाइम्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट आफ्टर वन यूज। मीन्स कोई भी चीज़ जब हम लाते हैं तो हम उसको कई बार जब यूज़ करते हैं तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ रीयूज, यानी कि हम उसको फेंकते नहीं हैं एक बार यूज़ करने के बाद। यू कुड ऑल्सो गिव इट टू अदर्स हु कैन यूज़ इट। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वेस्ट है तो आप किसी दूसरे को दे सकते हो, लाइक ओल्ड बुक्स। ओके, लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। रीयूज क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस, यानी कि जब हम रीयूज कर सकते हैं क्लॉथ बैग्स को जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, यानी कि हम प्लास्टिक बैग्स ना लाके हम अपना ही शॉपिंग के लिए बैग ले जाएं, क्लॉथ बैग, ठीक है। और हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं रिपीटेडली। कैरी योर ओन स्टील वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ बाइंग बॉटल्ड वाटर और यूजिंग प्लास्टिक कप्स टू ड्रिंक वाटर, यानी कि जैसे बिस्लरी वगैरह की बोतल हम ले आते हैं ना, तो वो कैरी करने की बजाय, वो हम परचेज करने की बजाय क्या करेंगे, स्टील की जो बोटल्स होती हैं उसमें हम अपना वाटर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। गिव योर क्लोथ्स टू समवन हु कैन यूज़ इट। और जब आपके कपड़े जैसे कई बार छोटे हो जाते हैं तो हम उसको किसी दूसरे को दे सकते हैं जो नीडी पीपल होते हैं, ठीक है, जो उनका यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेक गिफ्ट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। और प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से हम घर में डेकोरेशन का जो मटेरियल है वो भी तैयार कर सकते हैं। व्हेन वी रीयूज समथिंग वी डिले इट फ्रॉम बिकमिंग वेस्ट, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं तो हम उसको वेस्ट बनने से बचा लेते हैं। ओके, नाउ रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ एन आइटम सो दैट इट इज़ स्टिल यूजफुल, यानी कि हम कोई भी आइटम जब हमारे लिए वेस्ट हो जाता है तो हम उसको रिसाइकलिंग के लिए, यानी कि उससे कोई दूसरा आइटम बनने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। न्यूज़पेपर, पेपर, कार्डबोर्ड कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक फ्रेश पेपर। इनसे हम फ्रेश पेपर बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। प्लास्टिक बोटल्स एंड कंटेनर्स कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक स्मॉल पैलेट्स फ्रॉम विच न्यू प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड। और जो प्लास्टिक बोटल्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, तो उनसे भी हमारे जो नए ऑब्जेक्ट्स हैं वो तैयार हो सकते हैं। वेट वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू कंपोस्ट एंड एक्सीलेंट फर्टिलाइजर। तो जो हमारा वेस्ट, फूड वेस्ट होता है, उससे हमारा मैन्योर बन सकता है, फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मलेस कंपोनेंट है और जो उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इवन उनकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है। ओके, आफ्टर दैट मेटल स्क्रैप कैन बी रिसाइकल्ड इनटू लिक्विड मेटल फ्रॉम विच न्यू मटेरियल कैन बी शेप्ड। और जो मेटल के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बिकमिंग वेस्ट बाय फाइंडिंग डिफरेंट फॉर्म्स वेयर इट कैन बी यूज्ड। ओके, तो मीन्स इससे हमारे जो नए ऑब्जेक्ट्स हैं वो बन जाते हैं और फिर हम उनको दोबारा से यूज कर लेते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? यस, the aim of waste management is to minimize the harmful effects of waste on the earth. Okay, how does reuse help? Yes, when we reuse something we delay it from becoming waste. Okay, so today we learned
what are the best practices to manage waste using the waste management hierarchy? What are the first 3 steps? Yes, reduce, reuse and recycle. Now let's discuss the homework. Reduce one item of waste at home. आप अपने घर पर कोई भी एक आइटम का यूज करना बिल्कुल कम कर देंगे. ओके, इट कुड बी क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक बैग की बजाय आप क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करेंगे. स्टील बोतल इंस्टेड ऑफ मिनरल वाटर. आप स्टील वाटर बोतल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मिनरल वाटर. ओके, बिस्लरी का यूज नहीं करेंगे. और हैंकरचीफ इंस्टेड ऑफ टिश्यू. टिश्यू की बजाय आप हैंकरचीफ का यूज करेंगे. ओके, राइट इट इन योर नोटबुक एंड गेट सिग्नेचर फ्रॉम पेरेंट ऑन द आइटम चोजन. और जो भी आप एक आइटम सिलेक्ट कर लेंगे उसके ऊपर आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराएंगे. ओके, कंप्लीट वर्कशीट नंबर 5 फॉर होमवर्क ऑल्सो. ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग.